اور بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی رہنماؤں کا اہم اجلاس، سپریم کورٹ کی دی گئی ڈیڈ لائن پر بریفنگ، الیکشن فنڈ کی فراہمی سے متعلق اتحادیوں کا پارلیمنٹ کے فیصلے پر کاربند رہنے کا عزم کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انصاف کے ترازو کے پلڑے برابر نہیں، ہمارا موقف درست ثابت ہو رہا ہے، پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے، اس کے فیصلوں کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اجلاس جاری ہے، مزید تفصیلات ہمارے کورسپونڈنٹ سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اہم خبر ہے، ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتائیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی رہنماؤں کا اہم اجلاس اور سپریم کورٹ کی دی گئی ڈیڈ لائن پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی۔ الیکشن فنڈ کی فراہمی سے متعلق اتحادیوں کا پارلیمنٹ کے فیصلے پر کاربند رہنے کا عزم کا اظہار سامنے آیا ہے۔ شاکر عباسی ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں، شاکر سے مزید ڈیٹیلز۔ شاکر، کیا فیصلے سامنے آ رہے ہیں؟ اجلاس جاری ہے، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ دیکھیں، آج آخری دن تھا جو سپریم کورٹ کی جانب سے ایک ٹائم دیا گیا تھا کہ مشاورت کر لیں اور سیاسی جماعتیں آپس میں اس معاملے کو حل کر لیں، تو اس آخری دن وزیر اعظم نے تمام اپنے اتحادی جماعتوں کے سرکردہ رہنما ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے مدعو کیا۔ کم از کم 2 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا اور تمام تر پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ وزیر قانون اعظم وزیر طاہر اور اٹارنی جنرل نے جو بھی اس وقت کی ڈیولپمنٹ ہے اب تک کی عدالتی، اس حوالے سے تمام اتحادیوں کو آگاہ کیا، ان کو بریف کیا۔ جو ابھی تک تو اس کی باضابطہ اعلامیہ تو جاری نہیں ہے اور اجلاس کے لیکن جو ذرائع میں بتا رہے ہیں ان کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو 14 مئی کے انتخابات کے حوالے سے جو موقف ہے اس پر اتحادی قائم ہے، اور مولانا فضل الرحمان خاص کر کے اس معاملے پر ان کا موقف ذرا سخت تھا کہ کسی قسم کے مذاکرات کے حق میں نہیں عمران خان یا تحریک انصاف سے مذاکرات کیے جائیں۔ اس سے آج کے اس اجلاس میں یہ عزم دہرایا گیا کہ کیونکہ قانون سازی کا تمام تر اختیارات پارلیمنٹ کا ہے، پارلیمنٹ ایک بالادست ادارہ ہے، تو پارلیمنٹ کیونکہ رد کر چکا ہے وہ فنڈ کی ٹرانسفر کے حوالے سے پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے جو ایک قرارداد آئی تھی پارلیمنٹ میں، اس کو رد کر چکا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور جو فیصلہ ہے اسے ہی قبول کیا جائے گا، اور اگر عدالت کی جانب سے کوئی اس طرح کا فیصلہ آتا ہے تو پارلیمنٹ پر بھرپور اس پر رد عمل دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حالیہ آڈیو لیکس جو ہے وہ لیک ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے بھی شرکاء نے تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے ذرائع کنفرم کیا کہ یہ بات ہوئی ہے کہ پلڑے کے حوالے سے کہ اعتراضوں کے دونوں پلڑے برابر نہیں ہیں، اور کسی بھی طرح سے بھی بندوق یا تھوڑے کے زور پر جو ہے وہ ہمیں انتخابات کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تمام شرکاء نے اس موقف کو ایک بار پھر دہرایا کہ ملک میں انتخابات چاروں صوبوں اور قومی اسمبلی کے وہ ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ پارلیمنٹ اس حوالے سے اپنا فیصلہ دے چکی ہے، تو اس لیے تمام اتحادی جو جماعتیں اس پر متفق نظر آئی۔ مولانا فضل الرحمان کیونکہ انہوں نے اپنی مجلس عاملہ کا اجلاس بھی بلا رکھا ہے جو آج سے شروع ہوگا 3-4 دن تک۔ مطلب شاکر، کہا جا سکتا ہے کہ اجلاس کے بعد ابھی باقاعدہ ایجنڈا تو جاری نہیں کیا گیا اجلاس کا، لیکن یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں شاکر کہ یہ جو کہا جا رہا تھا پی ڈی ایم کی جانب سے کہ ایک دن ہی انتخابات ہوں گے پورے ملک میں، اس فیصلے پہ برقرار ہیں۔ جی بالکل، تمام جماعتیں یک زبان اس بات پر متفق ہیں کہ انتخابات ملک میں قومی اور چاروں صوبائی اسمبلی کے ایک ہی دن کرائے جائیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی کسی اور جو بھی کوئی اور آپشن آتا ہے اس پر وہ اتفاق نہیں کریں گے، اور پارلیمنٹ سے اس کی بھی توثیق ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کیونکہ مذاکرات کے حوالے سے کچھ ایسی آوازیں اٹھی تھی کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، تو مولانا کا موقف اس حوالے سے بڑا واضح اور دو ٹوک تھا۔ انہوں نے تمام تر امکانات جو تھے مذاکرات کے اس حوالے سے انکار بھی کیا، ڈٹے بھی رہے، اور انہوں نے مزید وقت اس طرح مانگا کہ ان کی مجلس عاملہ کا اجلاس آج سے اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے جو 2 یا 3 دن تک جاری رہے گا، تو انہوں نے کہا کہ اس ایشو کو لے کر میں اپنی یہ معاملہ مجلس عاملہ میں بھی رکھوں گا، اور وہاں سے جو بھی ایک مشترکہ میری جماعت فیصلہ کرے گی اس سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو آگاہ کروں گا، اور وہی ہمارا موقف ہوگا۔ تو اس اجلاس میں جو ابھی باضابطہ اعلامیہ اس کا آنا باقی ہے، لیکن اس بات پر تمام شرکاء متفق تھے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا، اور 14 تاریخ کو جو پنجاب کے الیکشن کی ڈیٹ ہے اس حوالے سے بھی جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے کہ فنڈ نہیں منتقل کرنے، اس پر جو ہے وہ تمام اتحادی جماعتیں حکومت ہوئی وہ ایک پیج پر کھڑی نظر آئی۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شاکر عباسی، تمام تر تفصیلات سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کو اپنے نشانے پر رکھ لیا ہے۔ کہتی ہیں 2018 میں حکومت باجوہ نے بنائی، عالمی سازش باجوہ نے کی، توشہ خانہ سے گھڑیاں باجوہ کے کہنے پر چوری ہوئیں، عدت میں شادی باجوہ کے کہنے پر کی، ملک ریاض سے ہیرے زمینیں پنکی نے باجوہ کے کہنے پر رشوت میں لی، میر جعفر کو ایکسٹینشن اور دوسری ایکسٹینشن کی آفر باجوہ کے کہنے پر دی، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں باجوہ کے کہنے پر توڑی، تم صرف اپنی مرضی سے 55 روپے میں بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس ہیلی کاپٹر کی سیر کیا کرتے تھے۔
तहरीक इंसाफ ने निगरान हुकूमतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। फवाद चौधरी ने आइन के आर्टिकल 184/3 की दरख्वास्त अदालत उस्मा में दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वफाकी हुकूमत ने पंजाब और केपी में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने से इनकार कर दिया है। वफाकी हुकूमत का इलेक्शन के लिए फ़ंड से इनकार किया और आइन की खिलाफ वर्जी क्या नहीं है। आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन आइनी तकाजा है। आइन निगरान हुकूमतों की मियाद में तोसी की इजाज़त नहीं देता। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और निगरान वज़ीर आला केपी को फौरी ओहदे छोड़ने का हुक्म दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला को काम से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी। दरख्वास्त साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही और महमूद खान की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि पंजाब और केपी में निगरान वज़ीर आला आइनी मुद्दत पूरी कर चुके मोहसिन नकवी और आज़म खान को काम से रोका जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल की तबीयत नासाज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेंच अचानक डी लिस्ट कर दिया गया है। इस बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए। पंजाब में जस्टिस जमाल मदोखेल और जस्टिस अतन बिनुल्लाह भी बेंच में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी मनसूख। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच की कॉज लिस्ट भी मनसूख कर दी गई। बेंच नंबर 2 के तमाम मुकदमात की समाअत के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दे दिया गया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल का बेंच खराबी सेहत के बायस डी लिस्ट हुआ है। जनरल सैयद आसिम मुनीर 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। पाक फौज की सरबराह का चीन में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने चाको चौमन दस्ते का मुआयना भी किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। पाक फौज के सिपह सालार पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने के लिए सरगर्म। जनरल सैयद आसिम मुनीर 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने आर्मी चीफ के 4 रोज़ा सरकारी दौरे का एलामिया जारी कर दिया। आर्मी चीफ को PLA आर्मी हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने चाको चौबन दस्ते का मुआयना किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने PLA आर्मी के कमांडर से तफसीली मुलाकात भी की, जिसमें दो तरफा सलामती के उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। दोनों कमांडरों ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने और फौजी ताउन बढ़ाने की जरूरत का आदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने PLA आर्मी के दस्तों की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा भी देखा। उन्होंने तरबियत के आला मयार और फौजियों की तरफ से दिखाई गई पेशावराना महारत की तारीफ की। आर्मी चीफ के दौरे चीन का ये पहला दिन था। इफ्तिताही मुलाकातें आर्मी चीफ के 4 रोज़ा दौरे का हिस्सा हैं। आइंदा दिनों में वो दोनों अफवाज के दरमियान देरीना ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए चीन में अस्करी रहनुमाओं से मजीद मुलाकातें भी करेंगे। और अभी आपको खबर दें कि जिला खैबर के इलाके तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ है। 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं, 4 जख्मी हुए हैं। हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद हुआ है। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए हैं। अहम खबर है, जिला खैबर के इलाके तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 4 जख्मी और हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा गोला बारूद। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए। जैकबाबाद में थाना मौलादाद की हदूद में बलोचिस्तान और सिंध पुलिस का डाकुओं से मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में बलोचिस्तान पुलिस की पुलिस ऑफिसर समेत 6 एहलकार शहीद हो गए। लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गईं। शहीद एहलकारों में सब इंस्पेक्टर तैयब उमरानी, निसार अहमद, अब्दुल वहाब, उस्मान खादिम और रियाज शाह शामिल हैं। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे असद से हम राब्ता करें और उन्होंने अपडेट किया हमें। अहम खबर आपको दी जा रही है कि जैकबाबाद में थाना मौलादाद की हदूद में बलोचिस्तान और सिंध पुलिस का डाकुओं से मुकाबला हुआ और इस फायरिंग के तबादले में बलोचिस्तान पुलिस के पुलिस ऑफिसर समेत 6 एहलकार शहीद हो गए।
ठट्टा में ट्रक और वैन के दरमियान तसादुम में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशें ईडी सर्दखाने सोहराब गोट मुंतकिल कर दी गईं। गवर्नर सिंध ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर हैदराबाद से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस ने हादसे के बाद फरार होने वाले ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। ईद पर पिकनिक मनाना महंगा पड़ गया, खुशियां मातम में बदल गईं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद ठट्टा के करीब हादसे में जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशें ठट्टा से एडी सर्दखाने सोहराब गोट पहुंचा दी गईं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कज़ाफ़ी टाउन कराची से है। वो पिकनिक मनाने के लिए कींचर झील जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक अफराद आपस में दोस्त थे। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की शिनाख्त अबद आलम, नोमान अजीज, अदनान, अब्दुल्ला, तस्नीउल्लाह, मोहम्मद फैसल, नूरुल्लाह और कैसर के नामों से की गई है। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के इजलास के बाद खिताब कर रहे थे और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस खिताब में कहना था कि एक ही दिन में इलेक्शन होने चाहिए। इत्तेहादी पार्टियां इस बात पर मुत्तहिद हैं। इलेक्शन के लिए फ़ंड्स का मामला भी पार्लिमान ही ने हल करना है और हम हल करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों का मुतफ़िका फ़ैसला है कि इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस खिताब के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम आइन के मुताबिक फ़ैसले करना होता है। सुप्रीम कोर्ट 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला कर आगे चलना चाह रही थी। एक दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तमाम इत्तेहादी पार्टियां इस बात पर मुत्तहिद हैं और इलेक्शन के लिए जो फंड्स का मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर बहस है, पार्लिमान ही इस मामले को हल करेगी। इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों का मुतफ़िका फ़ैसला है कि इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो आइन के मुताबिक फ़ैसले देना है। सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था वो 4-3 का फ़ैसला था और एक ही दिन में इलेक्शन होने के लिए हम तमाम इत्तेहादी जमातों ने इत्तेफाक किया है, मुत्तहिद हैं इस बात पर। अभी जो इजलास हुआ इसमें फ़ैसला किया गया है और फंड्स का मामला पार्लिमान ही हल करेगी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इत्तेहादियों का मुतफ़िका फ़ैसला है कि इलेक्शन मुल्क में अक्टूबर में होने चाहिए और इंतखाबात एक ही वक्त में होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम आइन के मुताबिक फ़ैसले करना होता है। वेलकम बैक। बढ़ती हुई इस महंगाई ने चीनी की मिठास भी कड़वी कर दी है। हुकूमत ने चीनी की कीमत 90 रुपये से बढ़ाकर 98 रुपये 82 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर कर दी है। नए सरकारी रेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। गिरा फरोशों की मनमानियाँ जारी हैं। मार्केट में चीनी 120 से 130 रुपये फ़ी किलो में बिक रही है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद से। जी अब्दुल वहाब। बिल्कुल, महकमा खुराक और महकमा ज़राअत की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो 90 रुपये चीनी की कीमत फ़िक्स थी 91 रुपये, उसकी कीमत में जो है वो इजाफा करने के बाद आज 98 रुपये 82 पैसे परचून रेट उसका मुकर्रर कर दिया गया है। जो खुद साख्ता महंगाई और खुद साख्ता कीमतों में इजाफा किया था दुकानदारों की जानिब से, वो 125 से 130 रुपये किलो तक जो है वो मार्केट में बेची जा रही थी। कुछ यहाँ पर शहरी मौजूद से बात था। बस ये क्या करे, आवाम क्या करेगी, अब आवाम क्या फीका पिएगी, चीनी नहीं वो करेगी। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि रेट कम किए जाएं। 8 रुपये चीनी बढ़ गई है, 8 रुपये 82 पैसे। तो इसमें गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल, 8 रुपये महंगा करने पर दुकानदारों से बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, गवर्नमेंट ने आज नोटिफिकेशन जारी किया है कि चीनी जो है वो 98 रुपये 82 पैसे में अब आवाम को फ़रोख्त होगी, परचून रेट निकाल दिया है। मार्केट में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुका है। क्या रेट चल रहा है? मार्केटें आज खुली हैं, अभी रेट कन्फर्म बेटे कोई भी नहीं है। 5-6 दिन के बाद, ईद के बाद दुकानें कुछ खुली हैं, कुछ नहीं खुली। जिनका पड़ी है वो अपनी मन मार्जी से अभी भी दे रहा है, क्योंकि हम 2 तोड़े ले आए, बेची 2 तोड़ने के बाद अब लेने गए तो वो कहता है अभी यही रेट है। जी हमें क्या पता क्या रेट है पीछे से। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल देखी है कि गाहक तो परेशान है, लेकिन दुकानदार जो है महंगी दामों चीनी खरीद चुके हैं। अब उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अब सस्ती नहीं बेच सकते, जो पहला स्टॉक पड़ा है वो बिकेगा तो फिर अगला नोटिफिकेशन जब इन तक पहुँचेगा उसके बाद कीमतें कम की जाएंगी। जी अभी खेल के मैदान में आपको बताएं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। आज ट्रॉफी की रुनुमाई होगी। सुपर हीरो बैरी की खानदान को बचाने की खातिर कभी माजी तो कभी मुस्तकबिल को बदलने की कोशिशें और जंगजुओं पर ताबड़तोड़ हमले। हॉलीवुड की एक्शन, एडवेंचर और साइंस फिक्शन से भरपूर फिल्म द फ्लैश का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। 16 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।